فرماتے ہیں ہم نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. اس کا مطلب ہے اگر آخری سمجھ کے نہیں پڑھو گے تو نماز میں صرف مرغے کی طرح ٹھونگے لگاؤ گے, اور اگر آخری سمجھ کے پڑھو گے تو نماز معراج کو پہنچا دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کل کے لیے سوچتا ہے نا ظہر اور پڑھوں گا, وہ اصل بھی وہ جو ہے نا فجر بھی نہیں پڑھ پاتا. ہاں غوث اعظم فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے نا میں پھر عشاء بھی پڑھوں گا, فرماتے وہ تو مغرب بھی نہیں پڑھ پایا. سبحان اللہ. فرماتے صوفیہ تو یہ کہتے ہیں مغربی پڑھی ہے, عشاء کا نہیں پتا. تو اس میں یہ رو لو توبہ کر لو. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی تقریر کی ہے, ماں باپ کا احترام, مگر میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صرف بچے ذمہ دار ہیں اپنے بگڑنے میں؟ تیزی کے ساتھ جو بچے بگڑ رہے ہیں کیا صرف بچے اس میں ذمہ دار ہیں یا پھر ماں باپ کا بھی کوئی حق ہے؟ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اللہ کے ولی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں, اکابر میں شمار ہے. چل رہے ہیں, چلتے چلتے ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. بدکنا سمجھتے ہیں یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, بے قابو کھڑا ہو گیا. تو آپ نے گھوڑے کو باندھا, مصلی بچھا کے رونے لگے. مریدوں نے کہا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا, آپ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا, کیوں؟ کہنے لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتے, اس کے ماتحت. اس کا مطلب یہ کہ میرا رب ضرور مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میرا گھوڑا بھی میری بات نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے, منانا ہے تو پہلے اپنے رب کو منانا ہے. میں نے سوچا رب کو مناؤں, رب مان جائیں گے تو پھر سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ بیوی بچے پریشان کر رہے ہیں, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, تو کسی تعویذ والے کے پاس نہ جاؤ, نہ کسی اور کے پاس جا کے رو, بلکہ مسجد میں جاؤ اور اللہ سے کہو مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو بچے اور بیوی تو میری ہے مگر میرا ہی کہنا نہ مانتی, میری کہنا نہیں مان رہی. یقین جانو اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر سب خود راضی ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صلی اللہ علیہ شباب رسائل قبلہ, نعرہ تکبیر. تھوڑا مرد کان کھول کے میری بات سنیں, میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ عورت کے پیدا ہونے کے بعد بچے پہ ماں کا اثر نہیں ہوتا, پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی ابھی ہارورڈ میں ریسرچ ہوا, وہ ریسرچ جو ہے نا آج سے 10 سال پہلے مکمل ہو گیا. انہوں نے 25 سال ریسرچ کیا کہ بچے پاگل جو پیدا ہوتے ہیں یہ کون بچے ہیں, ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا کہ 80% وہ بچے پاگل ہو جاتے ہیں جب وہ پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ماں پر ہاتھ اٹھایا, ماں کو مارا, ماں پر اذیت پہنچائی, تو پیٹ کے بچے پہ اثر یہ ہوا کہ اس کا دماغی حالات خراب ہو گئے, اس کا توازن بیکار ہو گیا. باپ نے مارا تو اپنی بیوی کو تھا مگر ظلم اپنے بیٹے پہ کر دیا. جاہل مارتے ہیں عورتوں, بے وقوف مارتے ہیں عورتیں, سمجھدار لوگ نہیں مارتے. سمجھدار لوگ باہر نکل جاتے ہیں, اس وقت بات نہیں کرتے. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے, جو مریدوں کے لیے بہتر ہے وہ نہیں, جو مقتدیوں کے لیے بہتر ہے وہ نہیں. سب سے کمزور تو بیوی ہوتی ہے نا. اب جو بیوی سے اخلاق رکھتا ہوگا وہ تو سب سے بڑا اخلاق والا ہوگا نا. اب ذرا اس حدیث پہ تو غور کریں, آپ توجہ کریں میری بات. اب میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچے پر تھوڑا ایکو کم کر سکتے ہیں, ایکو آواز صاف کریں, ایکو کم کریں. ہاں ٹھیک ہے, اب صاف آ رہی ہے. اب میں تھوڑا سا سکون والے ماحول میں بولنا چاہتا ہوں, یہ ہوا نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ پیدا ہونے کے بعد بچے پہ اثر نہیں ہوتا, ماں کا پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے ہنسنے کا, اس کے رونے کا, اس کے کھانے کا, اس کے پینے کا, اس کے بولنے کا, اس کے اٹھنے کا, اس کے جاگنے کا, اس کے پریشان ہونے کا, اس کے سکون کا, سب کا اثر پیٹ کے بچے پہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب میڈیکل سائنس میں جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتی عورت پریگننٹ مومنٹ میں, جب حالت حمل میں جاتی ہے, جب گربھ اوستھا میں جاتی ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے تم یہ چاہتی ہو تمہارے بچے کے اندر زیادہ آئرن بڑھے, زیادہ تمہارا بچہ مضبوط ہو, تو زیادہ آپ جو ہے وہ بادام کھائیں, زیادہ سیب کھائیں. آپ چاہتی ہیں وٹامن ڈی بڑھے تو آپ سنترا کھائیں, آپ جو ہے وہ انار کھائیں, امرود کھائیں. آپ جتنا ڈرائی فروٹ اور فروٹ کھائیں گی, جتنی خوش رہیں گی, اتنا آپ کا بچہ خوش رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اور انناس اور پپیتا اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر اللہ کا قرآن پڑھے گی تو اثر ہوگا. قرآن کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے بھائی. اب تو تعبیر
तावीज बकरी के बराबर डले हुए माज़अल्लाह, और कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं औरत। वो समझती है तावीज़ों में बरकत है। मगर मैं बताऊं, इमाम गजाली फरमाते हैं, जिस घर की औरत सुबह को उठ के सिर्फ एक रुकू पढ़ दे, उस घर से क़यामत तक बरकत खत्म नहीं होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जो माँ अगर कुरान पढ़े, बच्चा पेट में है और माँ कुरान पढ़े तो असर कैसा होता है? दिल्ली के करीब पानीपत, वहां एक बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की ज़ुर्रियत में से, उनकी जनरेशन में से है। वो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते रोया है। रोने के बाद एक दिन, 2 दिन, 3, उसे डॉक्टर को दिखाया, यानी हकीम को दिखाया, कई हकीमों को दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ। उसे फिर ऐसा हुआ कि 1 महीने लगातार वो रोता रहा, तसलसल बरकरार रहा। 1 महीने के बाद हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के नमाज, हजरत सैयदना फखरुद्दीन, वो अल्लाह के वली, वो अपने मुरीदों के साथ सफर कर रहे थे। उन्होंने बच्चे को रोते सुना, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, आम बच्चा नहीं है, ये वली है, ये अल्लाह को याद कर रहा है बच्चा। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा हो चलते हैं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है घर में? तो उसका बाप निकल के आया, जी आप मेरा बेटा है ये बच्चा। कहा आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है? ना सोया है ना सोने दिया है, हकीमों के पास लेके जा रहे हैं, लगातार रो रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे बाद में बात करूंगा, पहले बच्चा लाएं। गोद में दिया, आपने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। आपने उसे गोद में लिया, वह बाप कहने लगा साहब बड़े बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने ये क्या पढ़ दिया इसके कान में? कहने लगे बात ये है कि आप पहले ये बताएं क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोते सोते जागते रोटी बनाते चक्की चलाते ऐसे रो रो के कुरान पढ़ा, अपने रब को ऐसे कुरान पढ़ा और ऐसे याद किया कि पेट के अंदर इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। ये पेट के अंदर इसकी कुरान सुनने की आदत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बच्चे को भूख लगी, तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शबाब मियां साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने अदलपुर, नारे तकबीर। ये जितने लड़के, और ये कहते हुए शर्म आ रही मगर कह रहा हूं, जिनके मोबाइलों ने इनके ईमान को बर्बाद कर दिया, और ये कहते हुए शर्म है मगर कह रहा हूं कि अब तन्हाइयां नौजवानों की ठीक नहीं है। ये नंगी तस्वीरें देखते हैं घटिया, और इनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें भी आती हैं, और अफसोस कि इनके ईमानों पे कोई असर नहीं पड़ता। सिहाबी ने कोई बेपर्दा औरत देख ली, आंख निकाल के फेंक दी, मगर आज का नौजवान एक फेसबुक पर डांस, डीजे, नाच देखता है, मगर उसे कोई शर्म, कोई हया नहीं, उसको कोई अल्लाह का खौफ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर याद रखो, ये जो बच्चे बिगड़ गए हैं, इनकी माओ से कसम दे के पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। बगावत और गुनाह में फर्क है, उलमा फरमाते हैं। वो गुनाह ये जो छुप के किया जाए, बगावत वो खुल के की जाए। मैं लेकर रहा हूं, मेरे घर में बड़ी सी टीवी लगी हुई है और घर में नाच हो रहा है, मेरी बीवी वहीं बैठी है, मेरी बेटी वहीं है, मेरा बेटा वहीं है, हम सब खुल के तेरी बगावत कर रहे हैं। मेरे ताया अल्लाह उन्हें बख्शे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। उन्होंने मरने से एक दिन पहले कहा था, मुझे पाला था तो कहा था बेटे अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमारी रूह आए, या तुम्हारे दादा की आए या परदादा की, तो मेरे लाल अपने घर में टीवी मत आने देना। नहीं, टीवी में खुल के गुनाह होते हैं बेशक। ये जो लोग बाहर बोल रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हें भी तौफीक देगा, ये भी अंदर आएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो ना इंशाअल्लाह। आमीन। ये जो बाहर बैठ के बोल रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ये अंदर आएंगे। आमीन। कहो ना इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें तौफीक देगा, इनके दिल में रहम पैदा होगा कि अंदर बातें अच्छी हो रही है, बैठ जाएं जाके इंशाअल्लाह। ये इंसानों वाली हरकत करेंगे जरूर इंशाअल्लाह। आप बैठे आराम से, आप बैठे, आप चाचा बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। अरे ना चाचा, मैं तो पहले ही आपसे कर रहा हूँ, आप जलाल में ना है, बैठ जाएं चाचा, आप बैठ जाएं। ये आप जरा डंडा भी तो रख लें, आराम से बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप इधर से नहीं, मैं आप कुछ नहीं कहूंगा, मैं आप इसे जलाल कर लेंगे, मुझे नहीं पता, आप नाराज ना हो। नहीं कोई बात नहीं, देखो हम कोई गुस्सा थोड़ी करेंगे। हुजूर कितना कहते थे लोगों से, गुस्सा थोड़ी होते थे सरकार, बेशक होते थोड़े तो। अरे हुजूर कितना कहते थे लोगों से, नहीं मानते थे।
गुस्सा हुजूर नहीं होते। क्योंकि कहना हमारा काम है, तौफीक अल्लाह का काम है। बेशक। अब मेरी बात सुने, बकरी का बच्चा पैदा होता है, आप सब गांव के रहने वाले ना, जी जी। बकरी का बच्चा पैदा होते ही माँ की नकल उतारता है, बोलता है नहीं। भैंस का बच्चा चलना शुरू हो जाता है बेशक बेशक। 5 मिनट में। और इंसान का बच्चा, हुजूर गैब पढ़ रहा हूं गौस पाक की, फरमाते हैं ऐ मुरीदो बताओ मेरे, इंसान का बच्चा न बोलता है जी जी। न चलता है, हालांकि अशरफुल मखलूकात है, अशरफ है, सबसे बेस्ट है, मगर ये बोला क्यों नहीं? फरमाते गौसे आजम सुनो, इस वजह से कि इसके ना बोलने में भी अल्लाह की हिकमत है। ये जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा, जैसा देखेगा वैसे ही चलेगा। अगर इसके सामने कुरान पढ़ा जाएगा तो ये कुरान पढ़ता हुआ जवान होगा, और अगर गालियां दी जाएंगी तो ये गालियां देगा। बेशक बेशक बेशक। हक ये उलमा माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, मौलवी मौलाना हाफिज होते हैं माँ बाप के फरमाबरदार। देखो 99% तो होते हैं, 1% कोई जलील हो तो उसका कोई जिक्र नहीं है, मगर 99% होते हैं। क्यों? जब आप किसी को गोद में लेना अपने बच्चे को, आप तजर्बा करना, और मैंने तजर्बा किया है अपने बच्चों पर, आप तजर्बा करना। बोलना आपका बच्चा सीखा नहीं, आपने उसको गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद आप उससे कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। जो कुछ नहीं जानता है बच्चा, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो जवाब दे रहा है अब्बा 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 अब्बा। आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। अरे तकबीर, अरे रिसालत। मैं अपने बच्चों के साथ मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने। क्या बात। और नौजवानों को हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, अगर अब तक बेनमाजी और औलाद भी अल्लाह ने दे दी है या फिर शादी होने वाली है तो अब नमाजी बन जाओ, क्योंकि अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। मैं मस्जिद में जाता हूँ, कोई फकरिया नहीं बता रहा हूँ, जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हर मुसलमान को जाना चाहिए। मैं जाता हूँ तो मेरा 7 साल का बेटा बड़ा है वो भी जाता है, और उससे छोटा बेटा 4 साल का वो भी जाता है, उससे छोटा बेटा 3 है, वो 2 साल का है, कभी कभी वो भी चला जाता है। मैं किसी को नहीं रोकता, और मैंने नमाजी भी वो कुछ नहीं कहते मियाँ के बच्चे कोई कुछ नहीं कहता, मगर मैं क्यों नहीं रोकता मालूम है? कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरे बच्चे याद करा करेंगे, चलो यार मस्जिद में चलो, हमारा बाप मस्जिद में जाता है। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अपने बाप को जितना मिस करता हूँ, और जितनी चीजें मैंने अपने बाप से सीखी किसी मौलवी से नहीं सीखी। मैं अपने बाप की तन्हाइयों की चीज भी मुझे याद है, हालांकि मैं आज से 22 साल पहले मेरे बाप का विसाल हुआ था, मगर आज भी मुझे जैसा अपना बाप याद है ऐसा कोई इंसान याद नहीं है। मुझे उसका चलना भी याद है, उसका बोलना भी याद है, उसका मुस्कुराने भी याद है। वो मस्जिद में जाता था, मस्जिद में जाना भी याद है, जब वो गौस पाक का नाम लेता था जितनी मोहब्बत से, उसका वो लहजा भी आज भी याद है। उसकी सारी चीजें मैंने अपने दिल के अंदर महसूस की हैं। याद रखो, बच्चों को नेक ना बनाओ, तुम नेक बन जाओ, बच्चे खुद नेक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अच्छा माए नेक हो तो बच्चे एक औरत अगर चाहे तो मर्द को बदल सकती है, सकती छोड़ो बदल देती है। एक औरत, कभी आदमी अपनी बहन माँ के साथ कभी बाजार नहीं गया, बीबी के साथ बाजार जाता है, और बच्चा गोद में लेके जाता है, बीबी आगे आगे, ये पीछे पीछे होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी बहन से भी पूछा था, उसे भी कुछ जरूरियात है, मगर छोड़ें, किसी को ध्यान देना है तरफ। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक औरत बाजार ले जा सकती है तो मस्जिद भी तो भेज सकती है ना। और एक औरत, आज तक नहीं सुना मैंने ये तो कहा कि इसके घर में घर ठीक नहीं है तलाक दिलवा दो, इसकी माँ ठीक नहीं तलाक दिलवा दो, ये आदमी ठीक नहीं तलाक दिलवा दो, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। आज तक नहीं सुना किसी लड़की ने कहा कि ये मेरा आदमी नमाज नहीं पढ़ता, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी बेनमाजी के साथ। और याद रखो, आपके नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक घर ठीक नहीं होगा। आप तो निकल जाते हो, सारी तरबियत मां करती है। जब तक माएं नेक नहीं होंगी, बच्चे नेक नहीं होंगे। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी कहा करो। पूरी ये है कि पहले अली ने और फातिमा ने बाप और मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले मां फातिमा होती है, फिर बेटा हुसैन होता है। अब माएं देख रही हैं तस्वीरें, डीजे डालने, उनके कानों में लगी हुई लीडें देख रही हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, और ये गंदी तस्वीरें। अब बच्चे नेक हो जाएंगे? आप क्या समझ रहे हैं? आप ना यहूदी हैं, ना नसरानी हैं, ना आप हिंदू हैं।
آپ مسلمان ہیں، بے شک بے شک اور مسلمان دنیا میں سیر تفریح کے لیے نہیں آیا، اس کا اللہ کہتا ہے میں نے اس کو جو ہے نا آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کاش کے لیے بھیجا ہے، بولو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان کا۔